Starting, let me give you a brief about like in case if any one of you are interested in robotics or IoT or in embedded system as well, and if you have a good resume, please forward it to me because we are participating in at Avivakti IIT Kanpur, which is around 200 international startups are there. So I have a lot of connections that require some interns. So in case your resume will be fitting for any of the roles, we will be forwarding you directly to their intern. And I'm not sure, as most of them are based on Bengaluru and Delhi. So at least around 70-80% will be offline. So remote options will not be there. But in case if there will be any requirements that is available to be fulfilled by the remote interns, I can share your resume. So like robotics, IoT, embedded systems. And if you have interest in drone technology, that as well. Okay. So you can just ping me on WhatsApp and share your resume with me. Okay. Okay. So machine learning might be possible because in machine learning everyone prefer the full-time intern. So like you, it might be not possible for you to be a part of it because they will be asking for a lot of requirements. But if you are good at machine learning, as if you have learned it before the tech fusion, then you can also forward your resume with me. Okay, let me share my screen. Just a second. What was the last topic we were discussing in the session? Anyone remember? The last topic that we covered in the last session. अरे वाह, Matplotlib. भाई, what was the last topic in Matplotlib? Any idea? Okay, pie chart. ठीक है. Okay, so those were the basics. Like how do we create a chart? How do we create a bar, scatter? Okay, and the pie chart. Let's come up some good examples, or you could say these are the more interesting topic in the Matplotlib and the more required topics in the Matplotlib if you are a data scientist. Okay, those were the basics. Let me share this code. Okay, I hope you can share this, see the screen. Okay, so look, after covering these topics, now we can move forward with some more advanced topics such as what will happen if we want to style and customize both at the same time. Like for example, you have some predefined styles. Let me put an example. Look, okay, list available styles, apply a style, create a simple plot. So what we are doing here, we are basically using this plt.style.available. So what it will be doing, it will be simply putting a list of all available styles, whatever the styles are available in the matplotlib, that all styles will be listed. Okay, and that plt.style.use, what we are doing, we are using it for globally. Like you remember that we were discussing about some global variable, same here as well. If you want to define a style for all of the charts, all of the plots that you are plotting, maybe in a code you are plotting 10 plots or maybe 20 plots or 30 plots, but you want the style for
each and every plot should be same or must be same. Then you have to define it globally. Then with the help of plt dot style and dot use, और जो भी आप स्टाइल का नाम, जैसे कि यहाँ पे हमने यूज़ किया जीजी प्लॉट, ऐसे बहुत सारे स्टाइल के नाम होते हैं जो आपको मिल जाएंगे आसानी से. You can simply put them and it will be globally defined. So whatever you will be plotting, that will be having a same style. So let's run this code. Okay. So what were we doing in the last sessions? We were having the graphs of the normal charts, like the data that is listed, but we were not having any continuous data. But in case if you want to print any continuous data, how we can do it? Let me, and I hope you remember the continuous. I hope you know about the continuous and the discrete data. So for example, by the way, let me again confirm it. Is my video, audio, screen, everything is clear? Because again, I'm not in the office. Okay, thank you. Look, so this is the styled plot, the GG plot. The GG plot is like this is a style. अब जब भी आपको कोई साइन कर्व जैसा शेप चाहिए होगा, then what you will use the GG plot, and the data that you will be defining, that is again what were we using? We will be using the np dot line space. अब ये लाइन स्पेस क्या होता है मैं आपको नहीं बताऊंगा. लाइन स्पेस फंक्शन हम numpy में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि लाइन स्पेस से क्या होता है. ठीक है, ये ग्राफ आपको दिखा. लेट मी कम बैक अगेन टू द कोड. लुक, ठीक है. तो जो x ने क्या पुट की, just give me a second, sorry. Is what we're putting here. The y value is having sine function, and the line space is, again you have to check what is this line space. 0, 10 और 100 का मतलब क्या होता है वो आपको खुद ही चेक करना है, मैं वापस से नहीं बताने वाला. और जो प्लॉट फंक्शन है ना, लुक, अब ऐसा मत समझ लेना कि जैसे हम कल जब देख रहे थे तब हमने जो देखा था, हमने देखा था कि प्लॉट फंक्शन का हम यूज करते हैं. तो प्लॉट फंक्शन क्या करते हैं, 2 पॉइंट्स को ऐड करता है. 2 पॉइंट जो होते हैं उनको ऐड करता है एक लाइन के थ्रू. बट स्टाइल कौन सी होगी वो हम अगर डिफाइन कर देंगे ग्लोबली, तो प्लॉट फंक्शन से आप साइन कर भी बना सकते हो. ठीक है, तो ऐसा मत समझ लेना कि डॉट प्लॉट इज ओनली यूज्ड फॉर लाइन, स्ट्रेट लाइन. लाइन आप बोल सकते हो लाइन को. अब ऑब्वियसली अगर साइन कर्व भी है तो हमने क्या किया, लाइन को बस इधर उधर, ये तो भी है तो लाइन तो है ही, क्योंकि अगेन हम जब 2 पॉइंट ऐड करेंगे तभी हमें लाइन कर्व मिलेगा. ठीक है, तो प्लॉट एक्स और वाई का यूज करेंगे. इनपुट वैल्यू अगर आप वाई में साइन की देंगे, बट अगेन np डॉट साइन एक्स लिखा है, यानी कि नमपाई के थ्रू हम साइन एक्स की वैल्यू दे सकते हैं, और किसी भी तरीके से हम साइन की वैल्यू नहीं दे सकते. और अगर मैट प्लॉट लिब नमपाई को कंपेटेबल नहीं कर रहा होता तो फिर आपको ये साइन का ग्राफ प्लॉट करने में बहुत दिक्कत आ जाती है. वापस से आपको बहुत सारी चीज़ें कोड करनी पड़ती है, क्योंकि हर एक वैल्यू को डिफाइन करना पड़ता है. साइन एक्स का फंक्शन बताना पड़ता है कि एक्स की वैल्यू ये होने पे ये आता है, वाई की वैल्यू ये होने पे आता है. बट हमें पता है कि नमपाई में ऑलरेडी साइन एक्स नाम का एक फंक्शन है, आप उसे डायरेक्टली पुट कर सकते हो. और एक्स की वैल्यूज हम कहाँ से पुट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं लाइन स्पेस फंक्शन से. ठीक है, नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल. ये तो हुआ कि अगर कभी भी आपको प्री डिफाइंड स्टाइल्स यूज करनी है ग्लोबली, तो आप कैसे यूज कर सकते हो. सिंपली आप स्टाइल डॉट यूज का अंदर आपको जो भी आपको स्टाइल यूज करनी है उसकी वैल्यू पुट करो, एंड इजीली यू कैन
एट द स्टाइल। अब एक और देखते हैं। अगेन ये सब हम जो भी कर रहे हैं वो कस्टमाइजेशन के लिए कर रहे हैं। हमने जो प्लॉट वगैरह पढ़ लिया था उसमें कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, बेसिक चीज़ हमने सारी खत्म कर ली, बस थोड़ी बहुत अब चीज़ें और बची हैं, बस उनके खत्म करने के बाद ही खत्म हो जाती है। एक और एग्जांपल, नाउ लुक। अब शायद आधों को पता ही नहीं, जरा कोई बताना लाइन स्पेस क्या होता है, कम से कम जिनको नहीं पता वो थोड़ा आता पता तो कर ले। लाइन स्पेस फंक्शन 0 10 5, और मतलब एक्स की वैल्यूज क्या क्या है, बोलो। अगर मैं लिख रहा हूँ x इक्वल्स टू एन पी डॉट लाइन स्पेस एंड देन 0 देन 10 एंड देन 5, तो x की वैल्यूज क्या क्या हैं? यार प्लीज ऐसे मत करो, बोलो यार। 0-10 के बीच में रुको आप, 5 आप वैल्यूज़ रुको एक। रुको 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 रुको। अब बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई, प्लीज बोलो। मुशर्रफ, खुशी, अनासा, गुरलीन कौर, ऐशान, नित्या, फराज। लाइन बस स्पेस हमने पढ़ा था ना। सर जी 0 से अफराज, 10 के बीच में मतलब 5 नंबर्स इवनली स्पेस। मतलब मुझे आप ये बता दो कि इसका क्या एक्स का इनपुट आएगा, एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, 1 2 3 या 1 4 5। ये ना लो मतलब नित्या, नित्या लिए भी कर दिया। हाँ अफराज बोलो। सर आई गेस 4 2 4 ऐसे ही 2 4 6 मतलब इवनली स्पेस्ड होंगे। स्पेस कितने का होगा, 5 का? जो बीच में अगर मैं 0 से 10 के बीच में 5 का स्पेस होगा क्या, दो नंबर्स के बीच में, 0 देन 5 प्लस 10। बोलो सीधा बोलो, क्या बोल रहे थे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? मैं नहीं पढ़ना आज आगे जब तक बोलोगे थे। 0 2.5 5.5 7.5 10, पक्का? चलो ठीक है। लुक, वो आप हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसमें भी हमें दिखेगा। देखो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज क्लियर दीज फंक्शंस, क्योंकि नमपाई और पांडास के कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो हर जगह यूज होते हैं। कहीं भी आप जाइए वो हमेशा आपको दिखेंगे, जब भी डेटा दिखेगा तो ये फंक्शंस आपको कॉमनली है, दिखना ही दिखना। जैसे रैंडम फंक्शंस हो गए, लाइन स्पेस हो गए, ये नमपाई के ऐसे फंक्शंस होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। अगर आपने कहीं भी लिख दिया पाइथन और गलती से लिख दिया नमपाई, कोई भी आपको पूछेगा ये कि इनका आउटपुट क्या है, डायरेक्टली नहीं पूछेगा तो कोड देगा, कोड में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेरीज होती हैं, उन क्वेरीज में साफ लिखा होता है विद द हेल्प ऑफ नमपाई, देन तो आप कैसे करोगे, आपको डेटा जब दिया होगा, जब आपको लाइन स्पेस नहीं पता होगा। ठीक है, तो जस्ट लुक इनटू इट। और वापस से हम क्या कर रहे हैं कि y की वैल्यू में हम क्या कर रहे हैं, x मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2। ठीक है, प्लॉट में अगेन हमारा सारा जो डेटा वो क्या है, x और y नॉर्मल डेटा, यानी कि जो भी वैल्यूज आएंगी वो वापस में एक लाइन के थ्रू हो जाएंगे। बट हम कर क्या रहे हैं, टिक्स को कस्टमाइज कर रहे हैं। टिक्स का मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ से आउटपुट आने वाला है ना, एक मिनट में आपको रन करके देता हूँ। लुक, तो जो हमारी टिक पोजीशन होती है, लाइक जो आपको नीचे वैल्यूज दिखी होती हैं, तो जो एक्स टिक्स होता है और वाई टिक्स होता है, वो टिक्स जो होता है ना, जो आपके ग्राफ में दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा कि 0 2 4 6 8 10, लो मीडियम हाई हायर हाईएस्ट, यानी कि जो 0 2 2 4 के, मैं मुझे वो नहीं लिखना, मुझे उनकी जगह कुछ और लिखना है। जो लेबलिंग है उनकी वो चेंज करनी है, जो हम इनको हम ग्राफ में टेक्स्ट बोलते हैं, तो उनका अगर मुझे चेंज करना है देन व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली यूज अ फंक्शन विच विल बी हेल्पिंग मी टू कस्टमाइज द लेबल्स। कि आप एक्स टिक्स और वाई टिक्स को चेंज करना है, तो पहले आप टिक्स जो आपको चेंज करनी है वो लिखोगे, और
उनके लेबल्स लिख दोगे, सिंपल। ठीक है ना। ये अगेन ये कस्टमाइजेशन बहुत छोटे छोटे, तो जल्दी जल्दी हम इनको खत्म कर लेते हैं एक बार। आप लोगों ने ट्राई किया क्या जो मैंने बोला था आपको जोमेटो के डेटा पे एक बार ट्राई करना, ग्राफ बनाने का? किसी ने किया ट्राई? अगर नहीं किया है तो कल क्या है, सैटरडे? हाँ कल सैटरडे है, संडे का डे ऑफ भी रखेंगे, देन आपको वही प्रोजेक्ट है। किसी ने ट्राई किया जोमेटो वाला डेटा? अगर किया है ट्राई देन आई विल सेंड अनदर डेटा, अगर नहीं किया है तो वही करना पड़ेगा। नहीं किया किसी ने? कोई बात नहीं, देन आई विल शेयर प्रोजेक्ट ऑन द सेम डेटा। ठीक है, ओके। सो लेट्स यूज अनदर एग्जाम्पल कि ये तो हो गया कि अगर आपको कस्टमाइजेशन करने हैं छोटे मोटे, जैसे पी डिफाइन स्टाइल हो गया और टेक्स्ट कस्टमाइजेशन हो गया, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। लाइक प्लॉट में और भी आपको लेबलिंग तो आपने चेंज कर ली, लेकिन आपको लॉक में ऊपर कुछ लिखना है या फिर टाइटल बदलना है, जो नॉर्मल कस्टमाइजेशन है। ठीक है, कॉलम्स जो होते हैं उनके नंबर ऑफ कॉलम्स को चेंज करना है, ये सारे बहुत सारे फंक्शन वो आप एक्सप्लोर कर लेना। लेट मी गिव अ गुड एग्जांपल ऑफ इट कि हम मैटप्लोट्लिब का यूज करके ग्रिड्स कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके, लुक। ठीक है, तो अब अगेन एक और फंक्शन है, फिगर फंक्शन, जो आपको ऐसे समझिए कि इन केस आपको कभी भी सब प्लॉटिंग करनी होती है या फिर प्लॉट करना होता है जिसमें आपको कोई स्पेसिफिक फिगर लिखना होता है, देन आप किसका यूज करेंगे, plt डॉट फिगर का। ठीक है, और जो ग्रिड स्पेक डॉट लेआउट होता है, यानी कि ग्रिड स्पेक का आप लेआउट डिफाइन करते हैं कि जो आपने पहले ग्रिड्स बनाई थी ना, तो उसकी कोई वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते थे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि रो 0 कॉलम 0 टू 1 में लिखना है, फिर रो 0 कॉलम 2 में लिखना है, रो 1 कॉलम 0 में लिखना है, रो 1 कॉलम 1। ठीक है, मतलब मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि ये वाला डेटा मुझे यहाँ यहाँ रखना है, ये वाला डेटा मुझे यहाँ यहाँ लिखना है, और मैं सब प्लॉट्स बना रहा हूँ सबके, कि फॉर एग्जांपल लेट्स रन इट, तब देखिएगा। सॉरी, मैं ग्रिड स्पेक वाली यूज कर रहा था। एंड लास्ट एग्जांपल में किसी ने पूछा भी नहीं था ग्रिड स्पेक क्या होता है। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, अब आप ये देख क्या होता है। ठीक है, अब
जो हमारा डेटा था उसको हमने क्या किया, ग्रिड हमारी जो बनी हुई है वो हमने डिफाइन की थी। कोड में हमने यहाँ पे बता रखा था कि जो मैं डेटा दे रहा हूँ यहाँ पे, उस डेटा को आपको ब्लॉक्स तो क्रिएट करने ही करने हैं। उनके सेट टाइटल भी मैंने लिखा था, ax1 डॉट सेट टाइटल वाइट प्लॉट। जो ये मतलब सेट टाइटल आपको क्या यूज, जब भी लाइक ax1 ax2 ax3 ax4 जो मैंने लिखा था वहाँ पे, जिनके कस्टम साइजेस मैंने डिफाइन किए थे, उसी में ही अगर मुझे उनके टाइटल डिफाइन करने हैं तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ वाइट प्लॉट, स्मॉल प्लॉट, टॉल प्लॉट, वाइट प्लॉट, ब्लो, जो भी, बट डजेंट मैटर। मेन जो यहाँ पे पॉइंट है वो हमारा क्या है कि आपने जो पहले ग्रिड बना, सॉरी, आपने जो पहले डेटा बनाए थे और जो बार्स बनाए थे उनका साइज फिक्स था। जब आप डेटा दे रहे थे तो उनके फिक्स साइज में बार्स आ रहे थे जब हम पिछली क्लास में बार क्रिएट कर रहे थे। बट यहाँ पे जो हमारे बार्स क्रिएट हो रहे हैं वो क्या है, कस्टमाइज है। यानी कि हमने यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि उनका साइज कितना होने वाला है, जो आपको यहाँ दिख रहा है मैप में, कि एक जो पूरा वाइड प्लॉट बना है वो 0 से लेके कहाँ तक है, 1 तक। जो स्मॉल प्लॉट बना है वो कहाँ तक, 0 से 1 तक है। बट इनके जो बीच की रेंज है, यानी कि मतलब बीच की डिस्टेंस, सिंपल प्लॉटिंग में और कुछ नहीं कि मुझे साइज कितना चाहिए, वैल्यू अभी भी उतनी है कि 0 1 ही है, बट कितना वाइड करना है, कितना स्मॉल करना है, टॉल करना है, वो उसको चेंज करने के लिए आपको ये फंक्शन यूज करने होते हैं। बट अगर आपको चाहिए कि आपको नॉर्मली किसी भी कॉमन साइज में चाहिए, बट कई बार होता है कि हमारे पास डेटा है, कोई एक डेटा को हमें वाइड कर प्लॉट करके दिखाना है, क्यों, क्योंकि वो उसमें उतनी वैल्यूज नहीं है हमारे पास। किसी एक डेटा में बहुत सारी वैल्यूज, हम तो स्मॉल प्लॉट में भी दिखा, सॉरी मैं अब उल्टा बोल गया, स्मॉल, जब हमारे पास कम वैल्यूज है तब हम स्मॉल प्लॉट में दिखा सकते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूज है तब हम वाइड प्लॉट में दिखा सकते हैं। क्योंकि कम वैल्यूज में अगर आप एक वाइड प्लॉट बनाओगे तो वो पूरा ग्राफ ना ऐसे इतना क्लियरली विजिबल नहीं होगा। तो आपको जब भी हमारे पास डेटा कम होता है तो आप ऐसे स्मॉल प्लॉट और वाइड प्लॉट का यूज कर सकते हो, जिससे कि आपके जो बार्स क्रिएट होंगे वो स्पेसिफाइड होंगे। जो कल आपने बार क्रिएट किए थे उसमें आप ये यूज करके देखना, कल वाला जो कोड था, कि इनको अगर हम वेरी करेंगे तो कैसे बार क्रिएट होके आएंगे। ठीक है, so let's come back to the code again. ठीक है, तो एज आई वाज मेंशनिंग दैट ax1 डॉट सेट टाइटल, ये सेट टाइटल आपको नाम देने के लिए, और जो फिगर हम बना रहे हैं यानी कि जो सब प्लॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं उनके कस्टम साइजेस डिफाइन करने के लिए। 0 से 2 में कर रहे थे, तो लाइक आप यहाँ पे 0 से 2 के बजाय 0 से 1 करोगे तो उतना ही छोटा हो जाएगा, 0 से 3 करोगे उतना जा नहीं सकता, क्योंकि हमारे ग्रिड स्पेस 2,3 का ही है। तो वो रेंज भी आपको देखनी पड़ेगी। 0 से 2,3 मतलब कि 2x3 का ही मैट्रिक है हमारे पास। तो ऐसा तो है नहीं कि 2 रोज के बाद आप तीसरी रोज में चले जाओगे, तो वो बस देखना होगा, बाकी और कुछ नहीं है। रो 0 रो 1 यहाँ पे क्यों लिखा है कि जो नॉर्मल आपकी बाय डिफॉल्ट होती है यहाँ पे नंबरिंग, जो हम पहले था हमने पांडास में, क्या होती है वो 0 1 2 ऐसे स्टार्ट होती है, अनटिल अनलेस यू आर नॉट चेंजिंग द लेबलिंग, या फिर जो इंडेक्सिंग होती चेंज नहीं करते। तो रो नंबर आपको याद होगा 0 1 2 लिख के आता था, तो इसी वजह से यहाँ रो 0 रो 1 लिखा है और कुछ नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी वो बाय डिफॉल्ट ही होंगी। तो हमेशा अगर बाय डिफॉल्ट की बात करते हैं तो रो की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। कॉलम की भी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से। यानी फर्स्ट रो मतलब रो 0, सेकेंड रो मतलब रो 1, जो इंडेक्सिंग होगी उसकी। ठीक है, तो ये हो गया एक एग्जांपल। एक और देख लेते हैं। चलो ये थोड़ा बोरिंग सा हो रहा है, हम ना 3D प्लॉट्स पे ही आ जाते हैं सीधा। देखो बचा क्या है, कुछ ही बचा है, वैसे तो हो ही गया लगभग, कि सब प्लॉटिंग में कुछ एक दो फंक्शंस और होते हैं जो एज ए बहुत सारा डेटा होता है, जब हमें उनको स्पेसिफाई करना होता है कि फॉर एग्जांपल कि डेटा को आपको चाहिए छोटा करके लिखो, बड़ा करके लिखो। प्लॉटिंग जो होती है वो कल जो हमने पढ़ा था उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती है, वही फाइनल प्लॉटिंग हमने होती है, वो सारे टाइप हमने पढ़ लिए थे। बट उस प्लॉटिंग में कस्टमाइजेशंस कैसे होते हैं कि लाल पीला नीला कर लो या साइज छोटा बड़ा कर लो, बस उतना ही। उसके बस 2-4 फंक्शंस होते हैं। तो वहाँ उसके बाद हमारी 2D प्लॉटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद मैट प्लॉट लिखना 2D प्लॉटिंग में और कुछ नहीं बचता उसके आगे।
आप जाओगे तो बस उसमें क्या आ जाता है, numpy और pandas के यूज करके हम बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट करते रहते हैं, बट मैटप्लॉटलिब के कंसेप्ट वहाँ खत्म हो जाते हैं 2D के। अब हम आ जाते हैं अपने 3D पे, कि 3D में अगर आपको कभी प्लॉटिंग करनी हो, 3D विजुअलाइजेशन करना हो, तब आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैटप्लॉटलिब ने अपना एक खुद का एक मॉड्यूल बना रखा है कि अगर आपको कभी भी 3D प्रिंटिंग करनी है, सॉरी 3D मॉड्यूल क्रिएट करना है या फिर 3D विजुअलाइजेशन करना है, तो आपको क्या करना होगा? कहाँ गया? लुक, ये जो एक्सिस 3D है ना, ये मैटप्लॉटलिब का ही है, और ये मैटप्लॉटलिब के टूल किट्स में एक प्लॉट 3D करके एक आपको मॉड्यूल होता है, मैटप्लॉटलिब का ही है, बट स्पेसिफाइड है किसके लिए? 3D के लिए। तो आपको हमेशा इसमें दिखाना होगा कि मैटप्लॉटलिब के कौन से लाइब्रेरी से हम उठा रहे हैं। हम उठा रहे हैं mplot 3D से, और उसका नाम क्या, मतलब ये पूरी एक लाइब्रेरी है, ये जो mpl toolkits mplot 3D, 3D रिलेटेड जितने भी आपको प्लॉटिंग होगी वो सब इसी में मिलेगी। और इसका जो फर्स्ट अगेन आई एम मेंशनिंग, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है इसका वो क्या है? एक्सिस 3D, जो बेसिक है, ठीक है। बाकी इसके अंदर बहुत सारे हैं, इसके अंदर mplot 3D के अंदर। तो अब हम पहला एक देख रहे हैं कि अगेन नॉर्मली हमारा जो हम फिगर क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने एक फिगर लिखा, प्लॉट डॉट फिगर लिखा, और ये जो चेंजेस आ रहे हैं, लेट मी फर्स्ट रन इट, देन मैं आपको बताता हूँ कि जो डेटा वो सब तो है ही, बट 3D का मतलब क्या होता है, कि कैसे देखेगा? अरे सॉरी, मुझे थोड़ा आलस है, इसलिए मैं वो मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट करने का भी कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ताकि लिख भी सकते हैं। लुक, इसमें ना अगर आपने कभी मैटप्लॉटलिब यूज़ नहीं किया होगा, तो ये वाला ग्राफ जब आप देखोगे ना, तब आपको पता पड़ेगा कि अच्छा ऐसे जो बुक्स में प्रिंट होते थे वो ऐसे प्रिंट किए जाते थे। इन केस अगर आपने मैटप्लॉटलिब कभी नहीं देखा है, तो ये वाले ग्राफ जब आते हैं ना, वो ना देखने में बड़े कूल लगते हैं। लुक इट, देखो, दिख रहे हैं? ये जो हमारी पूरा डेटा था, बस एक एक्सिस बढ़ गई, एक और पैरामीटर हमने यूज कर लिया, जो -4 -2 तो थे ही थे, एक्स और वाई तो था ही, मैं बस एक जेड और ले लिया, ठीक है। तो जो अब डेटा आएगा ना हमारा, वो 3D प्लॉटिंग में आएगा। बस यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो डेटा है वो डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे, और आप सोच रहे हो उसका 3D प्रिंट कर लेंगे, मतलब सॉरी 3D प्रिंट नहीं, 3D प्लॉट कर लेंगे। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है जब तक उसकी डिपेंडेंसी एक अलग थर्ड वेरिएबल पर नहीं है। तो हमेशा जब भी हमारे पास ऐसे 3 वेरिएबल्स होंगे और उनके बीच में हमें कभी भी कोई भी रिलेशन क्रिएट करना होगा, लाइक फॉर एग्जांपल x इक्वल्स टू जेड बाय, ठीक है, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, ये सारे ग्राफ आप जब एक बार प्लॉट करके देखोगे ना, तो आपने जितने भी फंक्शंस पढ़े होंगे अभी तक, जहाँ पे आपने मैथ में पढ़ा होगा, या फिर आपने मैथ में ही होते हैं और कहीं पढ़ोगे, होते हैं पहले कुछ, चाहोगे आप कहाँ पे थे, 12th में थे कुछ लास्ट में एक टॉपिक जिसमें 3 वेरिएबल्स आ जाते थे, तो उनको ना आपने जितने भी पढ़े थे उन सबको आप मैटप्लॉटलिब पे जाओ, वैल्यूज उनकी पुट करो, एक्स वाई जेड वेरिएबल डालो, तो जो आपको समझ भी नहीं आते थे ना कि ये 3 वैल्यूज अच्छा डिपेंड करके ये फंक्शन अच्छा ऐसा बनता है, तो क्यों होता है ये फंक्शन की जो आप फॉर्मूला याद करते थे वो ऐसा क्यों होता है, तो या फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के बाद ये वैल्यूज क्यों आती हैं, तो वो हम मैटप्लॉटलिब के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं उसको प्लॉट करके, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक एक्सिस 3D का यूज करके, जो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई और जी में, उनको प्रिंट करने के लिए। देखने में कूल नहीं लग रहा थोड़ा सा?
आपने इसको मैं इसका कोड लगाओ और फिर लिंक्डइन पे पोस्ट कर देना, एक्सप्लोरिंग 3D प्लॉटिंग विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। ये आप पोस्ट करना, ठीक है? ये आप लोगों का आज टास्क है। एक दो और एग्जांपल्स लेना, वरना ऐसे तो मुझे पता है आप कभी लिंक्डइन वगैरह एक्सेस भी नहीं करने वाले। आज ये आपका टास्क है। आपको क्या अभी क्या टाइम हो रहा है? 8:43। आप लोगों को ना उसको टैग कर देना, क्योंकि फिर वो मुझे नीचे दिखेगा भी ना, तो यहाँ से प्रमोशन भी हो गया। तो आपका ये टास्क है, आपको कोई भी 3D प्लॉटिंग करनी है, आप अपने कंपाइलर पे करिए। ऐसे 4-5 अच्छे से 3D प्लॉट निकालो और उनको लिंक्डइन पे पोस्ट करो। कंटेंट कहाँ से मिलेगा? अगर आपको इंग्लिश लिखने में कोई तकलीफ है तो चैट जीपीटी का यूज़ कर लेना। एंड यू विल सी कि ऐसे जब आप पोस्ट करते हो ना, तो उनके इंप्रेशंस होते हैं। अगर आपने लिंक्डइन का भी यूज़ करा होगा तो वहाँ पे आपको बोलता है क्रिएटर टूल्स करके कुछ होता है, एनालिटिक्स होते हैं। तो इंप्रेशंस आप ऐसी पोस्ट के देखोगे ना, इसमें विजुअलाइजेशंस होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आपकी जो एंगेजिंग होती है ऑडियंस, वो इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। तो आज आप लोगों का ये टास्क है। कितने लोग हैं यहाँ पे? मैं नाम नोट करूँगा, फिर मुझे चेक भी करना होगा। हम्म, हम्म, अफराज, सिमरत, कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास लिंक्डइन ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं बनाया, फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। खुशी, एहसान, मुशर्रफ, गुडलीन कौर। ठीक है, आज आप लोगों का टास्क है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस शो ऑफ करना है। ठीक है, थोड़ा सा शो ऑफ करोगे ना तो अंदर से अच्छा लगता है कि कुछ पढ़ रहे हैं तो कुछ आए तो। ठीक है, आपको 2-4 और फंक्शंस उठाने हैं खुद से। एक तो मैंने खुद ही दे दिया, आपको पोस्ट करना है। आज ये टास्क, आज 12 बजे से पहले आपको पोस्ट करना है लिंक्डइन पे। सबकी पोस्ट मुझे चाहिए, ठीक है? वरना आप लोग कुछ नहीं करते, भूल जाते हो सारी चीज़ें। ओके, तो एक दो और एग्जांपल्स हम देख लेते 3D प्लॉट पे। क्योंकि जब तक हमें ये चीज़ें पता नहीं होती ना, तब तक आप अगर देखोगे ना तो कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर कुछ बच्चे होते हैं, तो उनकी जब मैं पोस्ट देखता हूँ तो दे विल बी लाइक, अरे बहुत भयानक काम कर रही है, लाइक इट्स नथिंग। अगर आपको जरा सा भी पता होता है पाइथन के बारे में, तब आप बहुत आसानी से कर सकते हो कि मैंने क्या ही किया यहाँ पे कि जो मेरा डेटा था उसको मैंने किस में इंपोर्ट डाला, सॉरी 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 सॉरी, कि जो मेरा नॉर्मल इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब करता था, उसकी बजाय मैंने मैटप्लॉटलिब की एक और मॉड्यूल जो कि टूल किट करके होता है, जो स्पेसिफिकली डिजाइन होता है 3D के लिए, उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया एक्सेस 3D नाम का, और उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्शन इक्वल्स टू 3D लिखा। यानी कि जो प्रोजेक्शन हमें जब भी करना होता है, लाइक 3D एक्सिस पे आपको जाना होता है, तब आपको क्या लिखना होता है कि फिगर डॉट एड सबप्लॉट, मतलब ये सब तो कॉमन है, लाइक फिगर इक्वल्स टू plt डॉट फिगर, ये हम पहले भी कर रहे थे 2D में भी। फिर मैंने ax इक्वल्स टू लिखा फिगर डॉट एड सब प्लॉट 111 वो रेंज जो हमारी ग्राफ मारी थी, बस उसके लिए जो ब्लॉक्स बने थे, लाइक जो स्पेसिंग थी उसके लिए। बट अब मैंने जब लिखा प्रोजेक्शन इक्वल्स टू 3D, तब ही ये 3D एक्सिस पे जाएगा, वरना ये 3D एक्सिस पे नहीं जाएगा। फिर एक और फंक्शन मैंने यूज किया, वो है प्लॉट सरफेस। जो एक्स डॉट प्लॉट सरफेस लिखा है, जिसमें मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यूज के बाद सी मैप वेरिटस, लाइक इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, आप गूगल पे सर्च करिएगा, इससे ही आप पोस्ट बना सकते हो कि सी मैप की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ, तो आपको बहुत सारे इसके व्यूज मिल जाएंगे। बहुत सारे आपको इसके, लाइक हम जो देख रहे थे ना फिगर्स 2D में, तो बहुत सारे मिल जाएंगे। इसमें से एक है वेरिडिस। ठीक है, तो जो हमने यूज किया, जो कलर ग्रेडिंग आपके पास आई थी वेरिडिस थी वो। और प्लॉट सरफेस क्या करता है? 3D सरफेस पे प्लॉट करता है। प्रोजेक्शन 3D क्या करता है? 3D एक्सिस क्रिएट करता है। बस दो बातें याद रखनी होती है 3D मैटप्लॉटलिब में। पहला, प्रोजेक्शन इक्वल्स टू 3D, जो 3D एक्सिस क्रिएट करेगा। प्लॉट सरफेस, जो 3D सरफेस पे प्लॉट करेगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और प्लॉट सरफेस में अगर आप एक्स वाई रखोगे तो वो 2D वाला ही रहेगा, फिर 3D नहीं बनेगा। रहना रखना आपको तीन वेरिएबल्स पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे ना। अब एक दो चीजें और देख लेते हैं इसी में।
आपने वो देखे हैं जो सिविल वाले लोगों को पढ़ाया जाता, आप में से कोई सिविल केमिकल मैकेनिकल से है क्या? सिविल केमिकल मैकेनिकल कोई नहीं है? ओके, कोई नहीं है कि नहीं? ओके, खुशी एंड गुडलीन। तो आप लोगों को ना बहुत जगह ना हीट मैप्स पढ़ाए जाते हैं। आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो अभी आपको नहीं पढ़ाए गए होंगे शायद, बट आपको प्रोबेबली थर्ड ईयर तक आपको ना हीट मैप्स पढ़ाए जाते हैं। फिर वो हीट मैप्स के लिए आपको बोला जाता है, थोड़ी बहुत मैटप्लॉटलिब फॉर्मेलिटी में पढ़ा दी जाती है, प्रोफेसर आगे बताएगा और बोलेगा ऐसे ऐसे हीट मैप जनरेट कर लो। बट हीट मैप जनरेट करने का कोड पता है कितनी लाइन? 3-4 लाइन का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो आपकी बुक्स में हीट मैप्स क्रिएट होते हैं, तो लेट्स ट्राई वन एग्जांपल कि हीट मैप्स कैसे क्रिएट करते हैं। अब मैं वापस से नहीं पूछूंगा क्योंकि फिर मुझे ही वो लगने लगता है कि भाई क्या ही कर रहे हो, पता ही है, मान के चल रहा हूँ आपको पता है क्या है इस डेटा के अंदर वैल्यू, मैं नहीं पूछ रहा वापस से। तो उसे रन कर लेते हैं सीधा सीधा, फिर देखते हैं क्या बन के आता है। लुक, तो ये हमारा क्या हो गया, हीट मैप हो गया कि 0 से 1 में मतलब ये एक रैंडम डेटा है इसलिए ये इतना सारा कलर बार आ रहा है, बट रैंडम डेटा में भी ये डिफाइन करना होता है हमें कि 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 ये आप डिफाइन कर सकते हो कलर रेंज। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया सिर्फ रॉ डेटा है, जो हमें रैंडम डॉट रैंड ने हमें वैल्यूज दी बिटवीन 5 to 5, रैंडम रैंडम वैल्यूज, रैंडम हीट वैल्यू, इसलिए ऐसा आ रहा है। बट अगर जब आप कोई प्रोजेक्ट के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू आपके पास एक रियल रॉ डेटा होता है, तब ऐसा ग्राफ नहीं आता, तब काफ़ी कैसे समझाऊँ, ग्रेडियंट टाइप की वैल्यूज आती हैं या फिर ग्रेडियंट टाइप का डेटा आता है। यहाँ पे ग्रेडियंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम रैंडम डॉट रैंड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप हीट मैप्स क्रिएट कर लेते हो। करना क्या होता है वो आपने अभी देखा था, मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड। लुक, तो आपको दो फंक्शंस यूज करने होते हैं, पहला होता है कलर बार, दूसरा होता है डॉट आई एम शो। ठीक है, डॉट आई एम शो में आपको जो सी मैपिंग लिखा है ना, हॉट जो बगल में ग्राफ लिख के आ रहा था, वो उसके लिए होता है। डेटा आपका जो डेटा आपने दिया ही दिया है, और इंटरपोलेशन के बहुत सारे नियरेस्ट फारेस्ट ऐसे करके बहुत सारे, जैसे आपने पढ़ा था ट्रू फॉल्स करके, ये ऐसे ही उसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। जो अब अगर आप मैकेनिक की बात तो आपको समझ आ रहा होगा कि इंटरपोलेशन में नियरेस्ट और उनका क्या मतलब आता है, नहीं आता है तो आप खुद जाके गूगल करिएगा, थोड़ा टफ है मुझे ऐसे समझाना, उसके थोड़े आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इंटरपोलेशन क्या होता है। ठीक है, तो दो फंक्शंस हैं, डॉट आई एम शो और डॉट कलर बार। जो डॉट आई एम शो है वो आपको क्या करेगा, डॉट आई एम शो विल बी ओनली हेल्पिंग यू टू विजुलाइज द मैट्रिक्स, जो भी आपने डेटा दिया, जो विद द हेल्प ऑफ रैंडम डॉट रैंड 6,6 उसको क्या करेगा, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेगा। मैट्रिक्स तो है ही, बट जो मैट्रिक्स का डेटा है उसको कलर मैप करेगा, यानी कि 6,6 को डिफरेंट डिफरेंट कलर क्रिएट करेगा। बट जो कलर बार है वो क्या करेगा, वो आपकी कलर स्केल क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, और कुछ नहीं, इसमें दो ही फंक्शन हमने यूज किए हैं। और ये कलर बार के बाद जो डॉट आई एम शो लिखा है, यहाँ पे हमें जो फंक्शन में 6,6 डेटा दे रहे हैं, इसकी जगह आप कोई भी डेटा जो दे हुए, फॉर एग्जांपल आप अपने हाथ से कुछ वैल्यू प्रिंट कर लेना विद द हेल्प ऑफ अ लिस्ट। फिर आप उससे जब ट्राई करोगे तो एक नंपाई एरे के बना लेना लिस्ट के थ्रू, वो कुछ 1 to लेके 100 तक की वैल्यूज उसमें दे लेना। फिर उसके बाद जब आप डेटा विजुलाइज करोगे तो आपके पास ग्रेडियंट टाइप की वैल्यूज आएंगी, रैंडम वैल्यूज नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी रैंडमली असाइन कर रहा है मैट्रिक्स को कलर्स। जो कलर अभी असाइन हो रहा है वो रैंडम असाइंड है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, हीट मैप क्रिएट करना। अब एक और चीज देख लेते हैं,
ये इस पे नहीं चलेगा। जुपिटर नोटबुक है किसी के पास? फिर मैं उस को चैट बॉक्स पर डाल देता हूँ। जुपिटर नोटबुक को यूज कर रहा है अभी फिलहाल के लिए, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ। जुपिटर नोटबुक आप लोग क्या यूज करते हो? करते भी हो कि नहीं करते हो कुछ? जरा बताना अफराज, आप क्या यूज करते हो पाइथन के लिए? सर VS कोड। सिमरत आप? VS कोड। सब VS कोड। खुशी आप? सर VS कोड। एहसान आप? VS कोड। मुशर्रफ आप? सर VS कोड ही। सारे VS कोड करें। गुरलीन आप? VS कोड। यार देखो, प्लीज ऐसा मत करो। अगर आपको पाइथन है तो मैं तो खैर मैं तो इस विंडोज यूज ही नहीं करता, तो इस पे जो भी पड़े होते हैं मैं वो उठा लेता हूँ। VS कोड इज लाइक, क्या बोलूं, उसको क्या बोलते हैं, बच्चों को देते हैं ना खेलने के लिए चीजें, कि सारे इतने इतने सारे तो इसमें एक्सटेंशंस हैं, सब कुछ है। ठीक है, मैं VS कोड की बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छा है जो भी है। बहुत सारे हमारी क्या बोलते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, आप हाँ उसे कोई बोल सकते हो। बट जब हम पाइथन पे आते हैं ना, स्पेसिफाइड पाइथन पे, तो थोड़ा ऐसे हम क्या बोलते हैं इसको, क्या बोल रहा है, मुझे मैं वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, ये जो इसको क्या बोल रहे हैं, प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं इसको, आईडी, सॉरी। तो जो हम ऐसी आईडी यूज करते हैं जो स्पेसिफाइड होती है पाइथन के लिए, उसका रीजन क्या होता है? वो रीजन ये मैं अभी जब मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं अभी कोड लिखने वाला हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जुपिटर पे ही चलेगा, क्योंकि जुपिटर पे ही वो लाइब्रेरी सपोर्ट करती है, बाकी और किसी आईडी पे तो सपोर्ट ही नहीं करेगी, एरर आएगा। ठीक है, तो अगर आपको पाइथन एक्सप्लोर करना है तो जुपिटर करो, जुपिटर इज बेस्ट फॉर पाइथन। ठीक है, VS कोड तो है ही। खैर खैर मैं तो ऑनलाइन कंपाइलर यूज करता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा वाला नूब हूँ। ठीक है, हम किडिंग। आपको अगर करना है तो आप जुपिटर पे ही शिफ्ट कर लीजिए, थोड़ा आसानी हो जाएगी पाइथन में। अगर पाइथन के अलावा भी अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करता है फिर ठीक है, VS कोड चल जाएगा, फिर इतना स्पेसिफाई नहीं होता। मैं वो कोड ग्रुप पे शेयर कर लूंगा, बट कोई बात नहीं, जुपिटर कहाँ ही आप उसको इंस्टॉल करने बैठोगे। लुक, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत और हो गए इसके, कि अगर आपको कोई प्लॉट सेव करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है, ये हर जगह होता है। जैसे आप नंपाई पांडाज में भी कर रहे थे, इसमें भी कि पहला तो एक तो हो गया कि अगर प्लॉट बनाए, सॉरी मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। पहला तो हो गया कि प्लॉट बनाया, मैंने स्क्रीनशॉट उठा लिया, बस क्यों ही फिजूल में सेव और करने जाओ। बट नहीं, जब आपका डेटा 10,000 या बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा होता है, तब आपका जो क्वालिटी होती है वो डिग्रेड हो जाती है स्क्रीनशॉट में। इसलिए जो आपने डेटा बनाया होता है उसको आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट तो है ही खैर, बट फिर भी आप एक हाई डेफिनेशन पिक्चर चाहते हैं, तब आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। So let me put a code। और हाँ, ऑब्वियसली जब इमेजेस आपको सेव करनी होंगी या एक्सपोर्ट करनी होंगी इसके थ्रू, तो आपको वही जो हम पहले कर रहे थे, जो नमपाइज और पांडाज में फाइल क्रिएट कर रहे थे, सेम वैसे ही। ठीक है, लाइन स्पेस वापस से 010। ये चलो मैं मुझे नहीं पता, ये कुछ तो भी लिखा है वर्क, फिर से फिर से एक मुझे दुख हो जाएगा, इसलिए मैं इसको बोल ही नहीं रहा। ये कुछ तो भी लिखा है, ठीक है, कुछ तो भी वैल्यूज हैं एक्स के पास, क्या है पता नहीं, वो मुझे नहीं आती। आपको आते हो तो देख लेना, मैं तो नहीं जानता। बट वाई की वैल्यूज क्या है, साइन एक्स है। ग्राफ हमारा प्लॉट क्या होगा, साइन के कर्व में ही होगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू इसमें जा रही है एक्स और वाई में। बट अब मुझे इसको सेव करना है, टाइटल में से ये प्लॉट एग्जाम्पल लिखना है, और जब भी आपको लिखना है हो गया। जितने भी हमने अभी फिगर्स बनाए, जितने भी हमने अभी ग्राफ बनाए, जितने भी हमने 3D ग्राफ बनाए, सबको आप जब फिगर क्रिएट, कोई भी फिगर क्रिएट कर रहे हो, सेव FIG उसका नाम,
और इसमें डीपीआई क्या होता है, जरा कोई बताना। डीपीआई जल्दी जल्दी जल्दी। आपके माउस में भी एक बटन होता है डीपीआई के लिए। छोड़ दो इंजीनियरिंग, छोड़ दो, कुछ नहीं रखा इंजीनियरिंग में, छोड़ दो आप लोग। डीपीआई पता है किसी को? Sir, like pixels, Dots per inch. dots per हाँ, inch, डॉट्स पर like इंच। something in pixels type. पिक्सल्स तो अलग चीज होगी ना, डॉट्स पर इंचेस तो चलो ठीक है, पिक्सल से आप कंपेयर कर सकते हो, बट डीपीआई मतलब डॉट्स पर इंचेस। जो हम माउस में भी एक बटन होता है स्पेसिफिकली, सारे में नहीं बट कई माउसेस में बटन आता है जिसमें लिखा होता है डीपीआई। मतलब आधे साल तक नॉन टेक बंदों को तो नहीं पता, चलो ठीक है, बट आप लोग इंजीनियर्स यार ये सब चीजें देखा करोगे, डीपीआई बटन काम कैसे करती है, कुछ चेंजेस आते भी कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीपीआई, जिसको आप कम ज्यादा करके अपने फिगर की या फिर अपनी इमेज की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, हो गया। तो जो भी आप मैं बोला था ना आपको लिंक पोस्ट करने के लिए, इसके थ्रू सेव कर लेना, अच्छी इमेज क्वालिटी आएगी। और वरना इतनी मेहनत ना करनी हो तो जो भी ग्राफ है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो ये हो गया सेव करने के लिए या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं बस। कि मतलब अभी जितना भी बचा ना, 3D में भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, वो आप एक्सप्लोर करेंगे, बट एक बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था। बट एक दो कस्टमाइजेशंस और हैं जो जो हमारी मतलब मैटप्लॉटलिब में ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि हमें कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी चाहिए होती है हर बार। क्योंकि अगर बार बार आप सेम चीज़ के करते रहोगे, सेम चीज़ के ग्राफ बनाते रहोगे तो सारे सेम दिखने लगते हैं। ठीक है, तो सेम कुछ नहीं, सारा ये कुछ तो भी लिखा है np.random.rand, पता नहीं मुझे क्या होता है, कुछ तो भी होता है, मैंने तो कभी नहीं पढ़ा मैंने ये। ठीक है, आपको पता ही होगा। cmap इक्वल्स टू coolworm, यानी कि जो cmap फंक्शन है बस एक ये एडिशन है, बाकी im शो में कोई भी हम कर ही रहते, इमेज शो जो भी आप करोगे इसके थ्रू डेटा के थ्रू, तो वो तो नॉर्मल हम कर ही रहते। बट cmap में क्या कर सकते हो आप, कलर डिफाइन कर सकते हो, coolworm कर सकते हो, रेड ग्रीन, जो भी आप करना है वो सारे आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। और ये सारे तो आपको पता ही है, कलर वाला आपको पता ही है। यानी कि जो पीछे वाला हम जो हॉट कर रहे थे ना, आपने देखा होगा, अब हॉट की वजह हम क्या पे ये क्या कर रहे हैं, कूल वार्म कर रहे हैं। लेट मी रन इट। ठीक है, तो इसकी ग्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, कूल वार्म से, और कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे आप कस्टम कलर्स क्रिएट कर सकते हो। ये एक छोटा सा एग्जांपल था, बाकी सारा कुछ सेम था इसमें। अब एक तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, वरना आप तो मुझे पता है कुछ नहीं करने वाले हो, मैं तो बोल दिया वो करना तो नहीं था। लुक, आपको क्या करना है, मैं खुद से आपको दे रहा हूँ 3D फंक्शन। आपको वो क्रिएट करना है, कहाँ है चैट बॉक्स, 2 minutes call you back। लुक, ठीक है, जो मैं बता रहा था ना साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका ग्राफ आपको प्रिंट करना है। मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, विजुलाइज अ मैथमेटिकल फंक्शन लाइक z इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूजिंग अ 3D सरफेस प्लॉट। ठीक है, ये आपको करना है, और 2-3 इसी टाइप के फंक्शन लिखना बस। अब इतना तो आप कर ही सकते हो, एक दो और दूँ। ये सारे ना जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये ना आज आपको लिंक्डइन पे अपलोड करना है। एक और लिखा मैंने, अब इसमें क्या करना है आपको, डैशबोर्ड। एक और लिख रहा हूँ मैं, बस वही लिख रहा हूँ जो देखने में अच्छे लगते हैं, शो अप आपका अच्छे से हो जाएगा। अब आप इसमें क्या करना है, स्कैटर प्लॉट का यूज करना है। ठीक है, क्लिकिंग ऑन पॉइंट्स प्रिंट्स देयर कोऑर्डिनेट्स, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा।
ठीक है, तो एक हो गया हमारा कि मैथमेटिकल फंक्शन, दूसरा डैशबोर्ड क्रिएट करना। ये वाला आप ट्राई करना, ये जो करेगा उसे मेरी तरफ से एक चॉकलेट। ये मेजरली हम गेम्स वगैरह में तो बहुत जगह यूज करते हैं कि जहाँ पे भी क्लिक करो वहाँ कोऑर्डिनेट्स क्रिएट हो जाए। ठीक है, ट्रेसिंग भी बोलते हैं इसे। एक और, बस एक और। ठीक है, implement a plot with secondary axis showing convergence like Celsius to Fahrenheit। फंक्शन क्रिएट करना है, दो प्लॉट बनाने हैं, वहां पे सेल्सियस से फॉरेनहाइट में कन्वर्जन दिखा देना है, एक तरफ सेल्सियस दूसरी तरफ फॉरेनहाइट। ठीक है, 1 2 3 4, और जो हमने कोड अभी यूज किए थे एग्जांपल्स में वो भी मैं अभी ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, तो वो भी आप यूज कर सकते हो पोस्ट के लिए। बट ये 4 में से एटलीस्ट 2 तो बना ही लेना। ये वाला तो कोई मत छोड़ना, फर्स्ट 3D सरफेस प्लॉट वाला है। ठीक है, ओके, विल सी यू। बड़ी मुश्किल से 6 बच्चे ही बचे हैं। बाय द वे हेड्स अप, एटलीस्ट आप बेयर कर पा रहे हो। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर हम कल। आपको प्रोजेक्ट देते हैं संडे एज यूजुअल, अब हम डे ऑफ रख लेते हैं। मंडे से हम स्टार्ट कर लेते हैं मशीन लर्निंग के कोर कंसेप्ट डायरेक्टली। Okay, bye bye. We'll see you tomorrow. No, I will see you on Monday. Bye. Simrat, please. Simrat, क्या है अभी? Simrat, please put this whole assignment in the group. चलो, Okay, sir. ठीक है, thank you.